Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. I'm your host Shikhar, and today I'm going to talk about Gujarat Titans versus Punjab Kings. But most importantly, the match between RCB and KKR. That was an amazing game. By the way, I have one big complaint with Gujarat Titans. They didn't play Sai Kishore all the games. Just after he got two or three hits from Shivam Dubey, they left him out. And today, when he came back, he has taken a four for and he broke the batting of Punjab Kings totally. He took the two most important wickets of Punjab Kings. Of course, you know who too. It's Shashank Singh and Ashutosh Sharma. So it was a brilliant performance by Sai Kishore, and the TN skipper, Tamil Nadu skipper, was on a roll today. I loved his celebration when he got Jitesh Sharma out. It was the tongue-in-cheek celebration because ऐसा होता है कि स्पिनर ऑल्सो कभी कभी स्पिनर को भी बुरा लगता है जब आप पहला ही बॉल इट वाज हिज फर्स्ट बॉल ऑफ द स्पेल एंड वहां पे जितेश डिसाइड्स टू स्टेप आउट एंड हिट हिम फॉर अ सिक्स ओवर लॉन्ग ऑफ सो ऑफ कोर्स द स्पिनर ऑल्सो फील्स बैड यार कि मैं इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ एक तो मैं साला शिवम दुबे से उस मैच के बाद ड्रॉप ही हो गया और अब मैं आके बॉलिंग कर रहा हूँ और आप मुझे फर्स्ट बॉल स्टेप आउट करके छक्का मार रहे हो तो उसके बाद जब उसने बोल्ड किया जितेश को एंड जितेश अगेन मतलब कि आई थिंक पंजाब किंग्स का डाउनफॉल का वन ऑफ द रीजंस इज जितेश ऑफ कोर्स टॉप ऑर्डर में आप जितेश को काउंट नहीं करोगे टॉप ऑर्डर फेलियर हो रहा है शिखर धवन नहीं है जितेश वाज सपोज टू बी वाइस कैप्टन क्योंकि वो कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे प्री टूर्नामेंट फोटो शूट के लिए but after later that it was told that Sam Curran arrived late from England and he was always supposed to be the vice captain and he was supposed to be the stand-in captain. Shikhar Dhawan has got injured. Johnny Bairstow uh, brutally out of form चला गया है since the test series started. He's totally out of form नहीं वो out of confidence है Johnny Bairstow now. He's out of confidence and then you bring in Riley Russo who उसकी भी किस्मत कितनी खराब है कि पहले पहले उनको बुमराह का यॉर्कर मिल गया और आज राशिद खान मिल गया सो all things going south for Punjab Kings. Their top order is not working, and I think it's time they should make couple of changes. They should uh, send out Livingston because he's not giving the impact that Raza can give as a mystery spinner. Sikandar Raza, he was Punjab's lucky charm actually till the last game he played. पंजाब सारे मैच जीत रही थी जो रजा जिसमें इन्वॉल्व था so I think it's time that they bring in Sikandar Raza and much needed time is to give Rabada a rest. He has bowled a lot and bring in Nathan Ellis. Actually, to be honest, Harshal Patel needs to be rested, but now he's picked up some cheap wickets जिसका कोई यूज नहीं है लास्ट में भी आके दो विकेट्स उसने ले लिए शाहरुख खान और राशिद खान के जो बिल्कुल ही यूजलेस थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बट इज नाउ कम बैक इनटू दैट पर्पल पटेल रेस द पर्पल कैप रेस जिसके वजह से उनका नाम पड़ा था पर्पल पटेल ये आकाश चोपड़ा ने ये सड़ा हुआ नाम दिया था बट पॉइंट इज कि हर्षल पटेल ने पहले तीन मैचेस तो पंजाब को हराने में उन्हीं का फॉल्ट था क्योंकि 11 के रन रेट से पहले चार मैचेस इनफैक्ट इंक्लूडिंग द राजस्थान रॉयल्स गेम उसमें शिमरॉन इटमैर को उन्होंने लेग स्टंप पे दे दिया था छक्का मारने के लिए तो मतलब 11 के रन रेट से तो वो चार मैचेस हरा चुके हैं पंजाब को नाउ पंजाब इज 2 wins and 6 losses out of 8 games. I am also wearing the Punjab Kings kind of jersey today, so I feel really bad today for Punjab Kings because इतने सारे लास्ट ओवर फिनिशेस हुए हैं और आज भी एक लास्ट ओवर तक चला ही गया मतलब राशिद खान could have just finished it easily but Riley Russo took a catch dragged the match to the last over so technically this will also count as a last over finish for Punjab Kings and Ashutosh and Shashank have been tremendous they deserve better results I think they deserve better results better team नहीं बोलूंगा but they deserve better results at least और आज साई किशोर ने आशुतोष और शशांक दोनों को आउट किया and he showed the class and the quality of the bowler that he is Ranji Trophy maybe he has taken some 54 wickets in this season he was leading Tamil Nadu to a fantastic campaign this year so hats off to him and Rashid Khan and Noor जो भाई अंपायर्स को पूरी तरह से चकमा दे दे रहे हैं
you never know when there you will get LBW from Rashid or Noor. The ball is pitching somewhere, it's impacting somewhere, it's just getting all three reds somehow. मतलब अगर आज आप सैम करन का डिसमिसल देखो, राइली रूसो का डिसमिसल देखो, तो मतलब आपको पता चल जाएगा. लियम लिविंगस्टन इज हैविंग अ रियल इशू प्लेइंग स्पिन, और मुझे लगता है अभी इट्स हाई टाइम दैट पंजाब मेक्स दीज चेंजेस. Otherwise, there's no point of playing the tournament. And Sam Curran should make some good decisions. I think the decision to bat first was also unnecessary. Matlab, when you're playing so well, you're chasing so well, Ashutosh and Shashank are in such good rhythm while chasing. Why do you have to take those kind of decisions? It was not required. I mean, today's pitch was ideal pitch. They could have actually used Rahul Chair also, which they are not using Rahul Chair also. So a lot of things going wrong. But let's talk about the big match today, the afternoon thriller, the matinee thriller that we had. It was KKR versus RR. Now, in this game, I would say KKR started really well, and that was all thanks to Phil Salt. कल हम imagine कर रहे थे Travis Head opening with JFM, Jake Fraser McGurk. Just imagine England in T20 World Cup opening with Phil Salt and Will Jacks. Salt and Jacks. That's the opening pair because, you know, Jacks totally matched Phil Salt's effort today. He was like, तू अगर ये कर सकता है, I can also do the same. I can go one better. But Phil Salt gave them very, because the momentum, the opening momentum is so important for a team like KKR, and I think Gambhir has understood this very importantly and critically for KKR, the opening, because they have a very good finishes. They have Russell, they have Rinku, Russell. Those two finishers are themselves enough to finish most of the teams. And now they added Ramandeep also, and Ramandeep played a very critical innings. If you see the innings progression, 75 in the power play, 74 in the 9 overs. So first power play is 6 overs, and then you have the 9 overs set in the middle overs. That went for 74, and the 5 overs set at the end went for 73, which was because of Russell, but more because of Ramandeep. The momentum he got at the end. Russell was not able to bend down. यॉर्कर के लिए झुक नहीं पा रहा था. कभी कभी वो बाउंसर स्लोअर बाउंसर डाल रहे तो स्ट्रेच नहीं कर पाता है. उसको स्टैंड एंड डिलीवरी करना है, मोस्टली ज्यादा झुकना उकना नहीं है. But Ramandeep was really special. I mean, he bent down well, got that third man की तरफ 4, 2 छक्के, एक झुक के मारा, मतलब वो 6 लास्ट ओवर में. तो it was a special effort. मतलब I think RCB really bowled well in patches. Power play में फिर से एक बार काफी अच्छी bowling की. They didn't use Will Jacks surprisingly, but I think the bowling effort was quite good, especially from Cameron Green and the spinner Karan Sharma. अब करण शर्मा क्यों नहीं खेल रहा था, ये भी एक मिस्ट्री है अभी तक, क्योंकि आरसीबी के पास, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई बॉलर है नहीं करण शर्मा के अलावा. पता नहीं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिलेक्ट किया था हिमांशु शर्मा को, उसको पहले खिलाया, उसके बाद मयंक डगर को खिला रहे थे. बट करण शर्मा प्रूव टुडे कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर. अगर मिडिल ओवर्स में आके 4 overs 33 आपका स्पेल डाल रहे हो, और उसके बाद आप फिनिशिंग कर रहे हो इतना तगड़ा, मतलब कि he almost won them the game, Karan Sharma. So, it was very unfair from RCB not to play Karan Sharma. पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे इतने टाइम तक. श्रेयांश भाई मेरे साथ जुड़े हैं. श्रेयांश भाई, तो थोड़ा मैं बात कर रहा था आरसीबी केकेआर मैच के बारे में. तो क्या लगा आपका, क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स वी हैव मेड अ रिएक्शन वीडियो, बट आपका क्या रिएक्शन था उस मैच को देख के? नहीं, मैच केकेआर ने आरसीबी को फाइटिंग चांस दे दिया था बिकॉज ऑफ स्लो इनिंग्स ऑफ श्रेयस अय्यर. और जब जीत रहे थे, आई थिंक करण शर्मा पे कॉन्फिडेंस नहीं था दिनेश कार्तिक को, वो भारी पड़ गया. अदरवाइज उस ओवर में इतनी डॉट बॉल्स नहीं होती, तो लास्ट ओवर में 15-16 रन स्टार्क की बॉलिंग पे. तो जो मिडिल ओवर्स फेस था, अगर आप देखोगे तो उसमें आरसीबी आउटस्कोर्ड केकेआर बाय अ बिग मार्जिन. 25 रन से आउटस्कोर किया. हाँ, एग्जैक्टली. नहीं, बहुत अच्छा चेज किया एक्चुअली. आरसीबी को मैंने पहली बार देखा, मतलब गौतम गंभीर ने भी लिखा है
आई थिंक वो तो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो अपना आरसीबी फैंस के साथ थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ऐसा चेज मैंने मतलब लास्ट टाइम भी देखा था एसआरएच वाले मैच में भी और इस मैच में, ये दो मैच में। और वही मैं बोल रहा था कि जो टीम अभी पॉइंट्स में नीचे है ना, दे विल बिकम डेंजरस बिकॉज दे विल स्टार्ट प्लेइंग विथ मोर फ्रीडम बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। तो आज भी आरसीबी ने मतलब कि रजत पाटीदार जिसके ऊपर इतना ज्यादा फेथ बिलीफ डिवोशन दिखाया था आरसीबी वालों ने, आज फाइनली कोलकाता में वैसे भी उसका एक आईपीएल 100 था एंड टुडे अगेन ही प्लेड अ सुपर्ब नॉक। आल्सो विल जैक्स प्लेड अ 100 रन्स की पार्टनरशिप उनकी हो गई थी 47 बॉल्स में। तो आई थिंक इट वाज जस्ट सुपर्ब बैटिंग फ्रॉम आरसीबी बट दे कुडंट फिनिश अगेन। फिनिशर्स का वहां पे प्रॉब्लम हो गया। बट तीन मैं चार एक मैच चीज, क्लोज भी आ रहे हैं वो, उनके 4 या 6 पॉइंट्स हो सकते थे आरसीबी के। एंड आज हम्म, उनको एक मौका भी इसलिए मिला क्योंकि रिंकू रसल ने वैसा फ्लरिशिंग इनिंग्स नहीं खेला जैसा वो यूजुअली खेलते हैं 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे। तो हम्म, इस आईपीएल में कोई भी टोटल सेफ नहीं है, 220 तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आज फिर से कोलकाता 240 नहीं बना पाई, जो एक आउटसाइड चांस था। आरआर के साथ भी 240 बना सकते थे, बट उस दिन भी हम्म, 222 पे रह गए थे। तो यार ये भी एक बात है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि दो न्यूजीलैंडर्स हैं टोटल वर्ल्ड में जिनको एक फ्लाइंग इंग्लिश कीपर ने रन आउट करके मतलब या फिर सुपर ओवर करवाया है या फिर सुपर ओवर जिताया है या फिर मैच बचाया है। वो है अ, वो है मार्टिन गप्टिल इन 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जिसको जॉस बटलर ने उड़ के रन आउट किया था। और आज फिल सॉल्ट ने लॉकी फर्ग्यूसन एक और कीवी को रन आउट किया। बहुत फनी सीक्वेंस था एक्चुअली वहां पे। स्टार्क के बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा लास्ट इनिंग्स में क्योंकि सब कोई पेल रहे हैं स्टार्क को, मतलब कि ही इज गेटिंग स्मैक्ड ऑल अराउंड बाय एवरीवन। ठीक है, और वहां पे वो आता है कि नहीं, मैं तो मतलब समझ में नहीं। स्टार इज फेमस फॉर हिज यॉर्कर्स एंड इन तो वो डालता है मेरे हिसाब से। मतलब आई 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 मतलब मेरे को थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना चाहिए, बट बेसिकली मुझे लग रहा है वो उतना एफर्ट ही नहीं नहीं नहीं। डाल रहा है। उसको पता है कंट्री आई का थिंक मैच उसको नहीं है। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उसको लगे कि अब वो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर पाएगा, यही रीजन हो सकता है। हम्म, नहीं मतलब वो यॉर्कर्स। मेरे कमिटमेंट लेवल उसका वो है कि यार ठीक है, क्लब क्रिकेट ही तो है, वैसा वाला है यार। मतलब तो वो हर सोच रहा कोई। है कि लो फुल टॉस से अच्छा मैं वाइड ऑफ द स्टंप्स डालूं, तो वाइड ऑफ द स्टंप्स ट्राई कर रहा है बस। पर वो इजीली पिक किया, करण शर्मा ने पिक किया। सबको लगा था कि डीके के आउट होते मैच खत्म हो गया, बट वो मैच खत्म नहीं हुआ था, बताओ। हम्म, नहीं मतलब स्टार का मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबको खत्म, सबको वही लगा कि 21 तो डिफेंड कर ही लेगा स्टार। मतलब कि इतना भी क्या खराब बॉलिंग कर लेगा। ठीक है, हमने देखा है वो शहबाज से पिटा है पहले और भी ऐसे लोगों से पिटा है। बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा करण शर्मा की बैटिंग एबिलिटी पे बिलीव था, इसलिए मैंने लिखा भी था कि मैंने देखा है करण शर्मा को छक्के मारते हुए। और उसने भाई मतलब जो छक्के मारे दे आर नॉट इजी सिक्सेस। एक्चुअली बहुत या पावर लगता एक्स्ट्रा है वो कवर। लेफ्ट, मतलब कि वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप वाले यॉर्कर, ऑलमोस्ट यॉर्कर या फुल टॉस टाइप की बॉल थी और तीन उसने छक्के मारे हैं। तीन छक्के इज नॉट अ जोक। 21 ऑफ 6 से इट केम डाउन टू 3 ऑफ 2, मतलब एक बॉल मिस किया उसने, बाकी तीन छक्के मारे। दिस इज अनरियल। मतलब उसके बाद स्टार्क हैज पुल्ड अ कैच ऑफ द आई ऑलमोस्ट अ कैच ऑफ द सेंचुरी। मतलब वो कैच अगर आप रिप्ले में भाई जाके वो देखो कैच लेता तो मार देते थे लोग उसको कोलकाता शायद वाले। ईडन गार्डन्स वाले उसको पब्लिकली असैसिनेट कर देते भाई, उसको लिंच कर देते क्योंकि वो कैच भाई मैजिकल है, मतलब भगवान का भेजा हुआ था। और सही में ऑस्ट्रेलियंस का कुछ तो है भाई, कितना भी पिट विट जाए भाई कहीं ना कहीं से वो मैच निकाल लेते हैं। स्टार को क्रेडिट मैच जीत देना ही जाते पड़ेगा हैं। कि भाई मतलब कैसे उसने निकाल लिया यार वो कैच। और उसके बाद ऑफ कोर्स लास्ट बॉल तो इट वाज ऑजी वर्सेस कीवी। तो भाई ऑसी वर्सेस कीवी में तो ऑसी की जीत होनी थी और इंग्लिश कीपर था, तो वहां भी हो गया। आई विश डीके को भी करण शर्मा की बैटिंग एबिलिटी का पता होता, तो क्योंकि मार्जिन लास्ट में सिर्फ 1 रन रह गई थी। अगर हम्म, पेनल्टी ओवर में थोड़े सिंगल्स लेता डीके, तो क्या पता ये मैच जीत जाती आरसीबी। हम्म, हम्म, यार इवन बट्स का वही तो चक्कर है। और डीके इसीलिए अब मतलब विनिंग कॉजेज में डीके की परफॉर्मेंस आपको कम ही दिखती है, लूजिंग में ज्यादा एग्जैक्टली। दिखती है। वेरी गुड पॉइंट। मतलब वेरी गुड पॉइंट। हाँ मतलब आज अगर वो बटलर की तरह करता ना फिर वो मतलब यही हाँ तो चेंज आ जाता है। यही तो चेंज आ जाता है। हाँ, उसने बहुत बहुत सही बड़ी पॉइंट है। गलती करी, 2 बाउंड्रीज उसको ऑलरेडी मिल गए थे, उसको लास्ट बॉल पे सिंगल लेना चाहिए था। वो शॉट के लिए जाना बहुत बड़ी गलती थी। नहीं तो भाई नहीं डीके
मतलब कि आप देखो जितने भी हीरोइक नॉक्स खेल रहे हैं अभी, मतलब मोस्टली दे आर इन लूजिंग कॉजेस। और मैं होप कर रहा हूँ कि कोई ये भी ट्रैक रखे कि मैच विनिंग क्वेश्चंस क्या है। जो भी कीपर्स खेल रहे हैं, अब जितेश खेल रहे हैं, जैसे जितेश तो अच्छा खेल ही नहीं रहे, खैर वो तो बात की बात है, बट मतलब आई होप समवन इज कीपिंग ट्रैक ऑफ मैच विनिंग क्वेश्चंस। Hi, hi guys. हाय विष्णु, Hey, यू मिस्ड अ क्या ग्रेट हो रहा मैच है? टुडे। यू मिस्ड अ ग्रेट मैच टुडे। अरे हाँ यार, I was watching a 17th या 19th, can't remember, but DK was not taking singles, man. After that six. वही तो बात है, हाँ। गलती हाँ। करती है। चलो चलो, carry on guys, carry on. हाँ तो आई थिंक मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड। प्रतीक, योर रिएक्शन ऑन जीटी पंजाब, क्या उसमें भाई मतलब क्या जीटी के लिए ये जस्ट एक शुरुआत है। आज बहुत दिनों के बाद एक मैच जीते, वो भी गिरते पड़ते। और इनको बहुत अभी compete करना है बड़े मैचेस में। इनको एमआई और सीएसके, बेसिकली इन दो टीमों को पीछे करना होगा अगर क्वालिफाई होना है। तो अभी तो ना के बराबर चांस लग रहा है। बट हाँ, दैट्स अ गुड स्टार्ट। 4 wins in 8, दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द आईपीएल, इवन दो देयर एनआरआर इज द वर्स्ट। तो अगर यहाँ से मैच जीतने का इनको मिल जाए मंत्रा, तो दे स्टिल हैव एन आउटसाइड चांस। गेम लेकिन यहाँ पे जीटी को बट अगेन जिताएंगे बड़े स्टार्स तो फ्लॉप हो गए आज फिर से, गिल और मिलर। हाँ, मिलर तो मतलब टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है। गिल और साई सुदर्शन एक्चुअली में वो 60 बॉल में 80 रन वाली पारी खेलते हैं, दोनों मिला के भी। और सुदर्शन देख रहा हूँ यार, वो हाँ 40 के आउट हो रहा है। मतलब हर मैच में देख लो आप, 35, 34, 41, 33, 37, वो वहां पे वो आउट ही हो। और उससे फायदा नहीं हो रहा जीटी को, क्योंकि सुदर्शन जो 30-40 आती है उसको, उसके बाद ही एक्सेलरेट होता है वो। उसका भी सेम ऋतुराज गायकवाड़ वाला आज क्या हिसाब है, लगता है अगर वो अगर 20-30 की तेवतिया इनिंग्स वो खेलेगा तो नॉक फायदा नहीं नहीं खेलता और वो एलबीडब्ल्यू हो जाता, जैसे देवांशु भाई बोल रहे थे कि अगर वो रिवर्स स्वीप में वो वाला हम रूल हटा दे, लॉ हटा दे कि पिचिंग आउटसाइड लेग, और वहां पे अगर तेवतिया नहीं ब्रार तो के बॉल पे आउट हो जाता मान लियो, तो क्या आज आपको लगता है जीटी जीत पाती मतलब? बट बट मेरे लिए शौक नहीं है। नहीं। मैंने कई बार को देखा है कि जब रिवर्स स्वीप खेलते हैं ना, तो वाइड बॉल भी नहीं देते, करेक्ट। हाँ हाँ करेक्ट। तो हाँ। यार यहाँ तो उनको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए ना एम्पायर को। अगर वो रिवर्स स्वीप खेल रहा है तो उसका लेग साइड तो ऑफ साइड बन गई ऑलरेडी। तो बहुत लेकिन गलत चीज। वाइड, एक्चुअली क्या होता है वाइड जो है ना, वो अंपायर का डिस्क्रिशन कॉल है, मतलब वो अपने उससे दे सकते हैं। लेकिन अभी जो एलबीडब्ल्यू का कॉल है ना, दैट इज हैविंग अ प्रोटोकॉल, मतलब जैसे अपने डीआरएस में भी देखा है, इसका एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल जब तक चेंज नहीं होगा तो अंपायर ये डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब समवन हैज टू जस्ट मेक अ रूल हियर, मतलब ये अंपायर डिस्क्रिशन पे नहीं है। तो आई थिंक इट वाज फेयर। तेवतिया मतलब कि एक्चुअली तेवतिया ने देख लिया था कि लेग साइड पिच की है, तभी उसने वो शॉट खेलने गया था वो भी। तो इट वाज जस्ट बहुत मतलब। अनलकी है टिबटिया, इतने मैचेस जिताए उसने आईपीएल में, तब भी उसको बहुत अंडररेट करते हैं और बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे भेजते हैं। अभी भी टीम्स उसको मतलब बड़ा प्लेयर नहीं मानती है, जबकि उसने इतने कठिन रोल पे मैच फिनिश करे। अरे तो आज भी राशिद सिंगल खान के बारे में क्या बोलेगा? उसको तो उसके बाद 2 नंबर और पीछे भेजते हैं राशिद खान को। नहीं, इट वाज अ गुड विन बाय जीटी टुडे एंड आई एम हैप्पी दैट साई किशोर, मैंने शुरू में बोला था आप लोग के ज्वाइन करने के पहले कि आर साई किशोर को नहीं खिलाना वाज जीटीज मिस्टेक। अगर आप एक लॉस और शिवम दुबे के 2 छक्के के बाद इतना डिस्करेज हो जाते हो और एक प्लेयर को नहीं खिलाते हो, और आज उसने भाई शशांक और आशुतोष दोनों को मतलब जेन्युइनली फ्लाइट में बीट करके आउट किया है, मतलब बंदे ने। तो ये दिखाता है कि बंदे में कितना टैलेंट है और आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। तो he's won the man of the match today, I think. So it's a great performance. से तो मुंबई मुंबई की जितेश नजर को भी भी सही। वैसे आउट किया, फ्लाइट करके बॉल पूरा प्रॉपर स्पिनर तरह से आउट किया जितेश को भी। जितेश तो हाँ। खैर बहुत डिसअपॉइंटिंग खेल रहा है, हम्म, वो तो नहीं मिलेगा उसको वर्ल्ड कप का टिकट अब। हम्म, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। हम्म, केएल, पंत, सैमसन, ईशान हम्म। किशन, 4 हैं। और डीके अपने सपनों में सोचने तो लग गया है। सैमसन का कम बट साई चांस है टू बी ऑनेस्ट, कम ही चांस मुझे लग रहा है। मुंबई की नजरें होगी इसके ऊपर, किसके साई ऊपर? किशोर के ऊपर। साई किशोर के ऊपर। हाँ, वही मुंबई मुंबई डेस्परेट। ने क्या किया एग्जैक्टली ऑक्शंस में अभी तक? वही जोफ्रा के पीछे लगता है सारे उनके, मतलब वही चले गए ना एक्चुअली।
क्योंकि ये सब प्लेयर्स को तो लेना चाहिए। और आज हम शॉन अबॉट की भी बात कर रहे थे देवांशु भाई से, तो शॉन अबॉट को भी नहीं लिया मुंबई ने। 2 करोड़ में ले ही लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। वो साला क्वेना मफाका को खिलाना, लूक वुड को ले रहे हैं, मतलब उनको लेना जरूरी है, भले ही उसने 2 करोड़ का बेस प्राइस रखा है, बट आई थिंक शॉन अबॉट वुड हैव हेल्प्ड देम अ लॉट। रोमारियो शेपर्ड से तो वो काफी अच्छा बॉलर है T20 का, उसको आप ले सकते थे। मतलब पंजाब नेथन एलिस को नहीं खिला रही है, ऑजीज को रखो यार, ऑजीज मैच विनर्स है। स्टार्क चाहे कितना भी पिटा है भाई, केकेआर आज 5 विन से 7 में से, तो सॉरी हाँ 5 विन से 7 मैचेस में से, तो भाई ऑजीज को तुम रखो। वो हो सकता है मैच क्लोज करते बट मैच जितवा देंगे ऐसा है ऑजीज का। 3 टीमें हो गई ना, 7 में से 5 वाली, और राजस्थान 7 में से 6। 3 नहीं हो अच्छा हाँ 3 टीम। एक बार पॉइंट्स टेबल देख ही लेते हैं। इसके की भी 5 विन्स हो गई है ना। नहीं 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 नहीं, सीएस के तो काफी पीछे है। मैं शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार हम पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं बिफोर वी गेट योर कमेंट्स ऑन द टुमारोज बिग मैच। राजस्थान 7 मैच 6 विन्स, कोलकाता 7 मैच 5 विन्स, सनराइजर 7 मैच 5 विन्स, सीएसके और लखनऊ 7 मैच 4 विन, और गुजरात अब 8 मैच में 4 विन है। मुंबई 7 मैच 3 विन। मुंबई गुजरात और ये मुंबई गुजरात को इक्वल कर सकती है, कल इक्वल कर सकती है मुंबई गुजरात को, 4-4 कर सकती है। और दिल्ली कैपिटल्स अभी काफी पीछे, 3 विन्स 5 लॉसेस। अगर मुंबई हारती है तो इनको इक्वल कर सकती है, दिल्ली कैपिटल्स को। और पंजाब और आरसीबी मुझे लग रहा है अब दे आर आउट ऑफ द रेस, बिकॉज इट विल जस्ट टेक टू मच। क्योंकि अब देखो इनके पास सिर्फ 6 मैचेस बचे हैं, और इनको 6 में से 6 जीतना होगा। पंजाब को 6 में से 6 जीतना पड़ेगा, आरसीबी को आई थिंक या 6 में से 5 तो जीतना पड़ेगा पंजाब को, और आरसीबी को तो शायद 6 में से 6 ही जीतना पड़ेगा। मतलब इस तरह का सीन है अभी। नहीं, हर्षा भोगले बोल रहा था लास्ट टाइम 16 पे क्वालिफिकेशन हुआ था, लास्ट हाँ आईपीएल। लास्ट टाइम 16 पे हुआ था, आरआर मिस कर गई थी इसलिए तो। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तो आरसीबी आउट ही हो गई, 16 पहुंच ही नहीं पाएगी। हाँ आरसीबी आउट हो गई फिर तो। अगर 14 पे हुआ तो दे हैव टू विन एवरीथिंग, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी। और पंजाब आल्सो नीड्स टू विन 5 आउट ऑफ 6, व्हिच लुक्स वेरी लेस लाइकली अभी तो। और डीसी लेस का भी लाइकली फोर उनके। आउट ऑफ सिक्स 4 आउट ऑफ 6 है डीसी का भी एक तरह से, जबकि उनके सीएसके के लेकिन अगेंस्ट 2 मैच आने वाले हैं। मतलब नहीं, वो तो पंजाब के हैं, केकेआर-एमआई के साथ मैच आने वाले हैं डीसी के। आरसीबी के तो जीटी के साथ 2 हैं, तो जीटी के बाद बहुत जबरदस्त चांस है वारा होने का। हाँ सही प्रतीक बात बहुत बोल रहे खुश हो, हो रहा होगा यार। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। प्रतीक चला गया, बट प्रतीक तो मजा आ जाता देख के, लगातार प्रतीक 2 कहाँ मैच। खुश और दुखी होता है, वो जीटी से उसको कहाँ ज्यादा मतलब है ज्यादा खुश दुख फैन लग ही नहीं रहे मुझे तो प्रतीक। मतलब जैसे हमने कल बात नहीं किया वो था, वो डिवाइडेड बाय टीम्स हो गया है। अब वो एसआरएच का फैन मुझे ज्यादा लग रहा है और जीटी का कम लग रहा है। एक ऐड आता था ना, डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय किंगफिशर, वैसे ही हो गया है, डिवाइडेड बाय टीम्स एंड यूनाइटेड बाय प्रतीक। सो बेसिकली प्रतीक इज इक्वल टू किंगफिशर नहीं, बट क्या है ना, देखो एसआरएच का जो क्रिकेट स्टाइल है खेलने का, आई थिंक वो तो हर क्रिकेट फैन को अच्छा लग रहा होगा यार, जो उनकी बैटिंग है। एग्जैक्टली, नो मतलब डाउट नो डाउट। वो, मतलब उसकी तो मतलब कोई, आइडियली मुंबई को वैसे खेलना चाहिए, पता है, जो फायर पावर मुंबई के पास है। हम्म दे शुड प्ले एसआरएच वे, एटलीस्ट इन बैटिंग। हम्म फिर भी वो 206 चेज नहीं कर पाया उस दिन, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। हम्म हम्म और अभी बहुत सही लिखा देवांशु भाई ने, एक हार्दिक पांड्या ने 3 टीमों के समीकरण बिगाड़ दिए। 18 करोड़ में खुद हाँ आया, एमआई खराब हुआ, एमआई का ऑक्शन हाँ पुअर हुआ। फिर उसके बाद आपके ये उधर चले गए, ग्रीन ग्रीन आरसीबी में चला गया, वहां ऑक्शन खराब हो गया, हाँ और जीटी सही बात खराब है। हो ही नहीं गई। वो पहले भी मैंने एक जगह लिखा था, मतलब एक्चुअली तीनों टीम्स का बेड़ा गर्क कर दिया एक बंदे ने। उसकी ग्रीड और उसके एम्बिशन ने 3 टीम्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ग्रीन तो चलो आज खेल तो रहा था, अभी तो मतलब बेचारे को खिला भी नहीं रहते। एक तो मैक्सवेल भी बोर होके चला गया, बोला मैं इस टीम के साथ नहीं रहूंगा। मतलब नहीं नहीं नहीं, चला हुआ नहीं है, वो पीछे बैठा हुआ था, मैंने देखा उसको पीछे बैठा हुआ था। अच्छा अच्छा, आई थिंक उसको ये 2 मैचेस जो खेली है आरसीबी, मतलब एक तो
262 287 वाला मैच और एक आज वाला मैच, मुझे लगता है मैक्सवेल अगर वो दोनों मैचेस में वो डिफरेंस कर सकता था, मतलब इस ऐसे मैचेस रहे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगता है उसने बहुत गलत टाइमिंग ही चूज किया है ये घर जाने का, मतलब घर मतलब कि बाहर बैठने का, तो उस तरफ से। नहीं बट ठीक है, मतलब वो आरसीबी को तो ऐसा लग रहा होगा ना, मतलब विराट कोहली वुड हैव बीन सो सैड। हम्म। अच्छा, उसके आउट पे आज क्या हो गया डिस्कशन? नहीं नहीं, डिस्कशन तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं वही तो, डिस्कशन एक्चुअली क्या है ना भाई, सब कुछ मैं बताऊं, सारी कंट्रोवर्सीज का जड़ है वो वर्ल्ड कप मैच इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पे विराट कोहली को मोहम्मद नवाज का डिसीजन मिल गया था, क्योंकि वहां पे भी शायद विराट कोहली क्रीज से आगे था, और वहां पे ये बोला गया था कि बैट्समैन के इम्पैक्ट पे देखा जाता है, मतलब जहां पे बैटर बॉल को मीट कर रहे हैं वो इम्पैक्ट पे देखा जा रहा है, और यहाँ पे इम्पैक्ट पे एक्चुअली हाई था, बॉल वॉज हायर देन द वेस्ट हाइट, बट वो क्रीज से आगे था, और उन्होंने ट्रेजेक्ट्री को एक्सटेंड करके दिखाया कि अगर ये क्रीज पे रहता और नॉर्मल पोजीशन पे रहता तो एक्चुअली 1.04 मीटर का हाइट है विराट कोहली के वेस्ट का, 1.04 मीटर, और बॉल का हाइट था 0.92 मीटर्स। तो वो कैलकुलेशन उन्होंने दिखाया, और बेसिस दैट मतलब जो प्रोटोकॉल बना है उसके हिसाब से आउट दे दिया। अब विराट कोहली मतलब वो गुस्सा उनका जस्टिफाइड है या नहीं है, क्योंकि ये चीज मुझे लगता है आईपीएल के अंपायर्स ने क्लैरिफाई किया नहीं है कि हम ऐसे देखने वाले हैं इस डिसीजन को, और लोग अभी भी वो नवाज और कोहली का जो वर्ल्ड कप में हुआ था आईसीसी मैच था वो उसके उस पे अटके हुए हैं कि वैसे होना चाहिए नो बॉल का कॉल, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कंफ्यूजन व्यूअर्स को भी है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मतलब तो कोहली गुस्सा तो हो गया एंड ही वाज प्लेइंग वेल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 300, तो उसको बुरा तो लगा होगा, और लास्ट दो मैचेस में वो बहुत फ्रीडम के साथ खेल रहा है, आज भी स्टार्क को पहले ही ओवर में छक्का उसने मार दिया, मतलब अमेजिंग शॉट था, तो वही बात है। हाँ मतलब एक्चुअली में लास्ट ईयर भी हमने इस पे खूब डिस्कशन किया था आईपीएल में कि ये जो रूल है जिसमें हम्म ये लोग ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, आधी बॉल नो बॉल नहीं रहती है, क्योंकि हम्म। T20 है, लोग आगे खेलते ही हैं, आगे बढ़ के मारते ही हैं, हम्म है ना। हम्म। आंद्रे रसल ये जो विकेट के इतने अंदर खेलता है, उसको आज नो नो बॉल्स मिल गई, उसको हाँ बेनिफिट हुआ, वो बच गया, क्योंकि वो हाँ। विकेट पीछे खेल रहा था। वो तो पहले ही बॉल पे आउट हो गया था भाई, फुल टॉस पे, हाँ तो आई थिंक कौन था वो बॉलर, लॉकी था शायद, लॉकी फर्ग्यूसन ही था, तो बहुत फनी बॉलिंग किया है लेकिन, बट यार आरसीबी ने अच्छी बॉलिंग की आज, ग्रीन और करण शर्मा पे आपका क्या ओपिनियन है, क्यों नहीं खिला रहे थे उसको इतना इतना टाइम, आपको क्या लगता है? यार, क्या बोले, मतलब समझ में नहीं आता इनका सिलेक्शन पैटर्न भी ना, जैसे इन्होंने हम्म ग्रीन को खिलाया लेकिन इतना नीचे खिला रहे हैं, आज भी उसको जो भेजा उसकी पोजीशन ही नहीं है यार। लास्ट ईयर देखो, मतलब हम्म ग्रीन सक्सेसफुल T20 में सिर्फ टॉप ऑर्डर में ही हुआ है, हम्म और हम्म ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे बड़ा जो इनके आर्मरी में हम्म, प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो एक तो हो रहा है फाफ डुप्लेसी, क्योंकि हाँ कैप्टन प्लस ओवरसीज स्पॉट और हाँ। और टॉप ऑर्डर, है ना, तो एक वो प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है इनका सिलेक्शन का, जो ये गड़बड़ झोला कर रहे हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ आज भी हुआ है श्रेयांश भाई, मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुयश प्रभु देसाई, अच्छा 11 ओवर में 138 थी टीम, 11 ओवर में 138 एंड 223 चेज करना था, तो एक्चुअली 85 रन चाहिए थे 54 बॉल्स में, 85 रन चाहिए थे 54 बॉल्स में, और वहां पे एक विकेट गिरता है विल जैक्स का, एंड आई एम सो शॉक टू सी दिस, पहले कैमरन ग्रीन आता है शायद, और उसके बाद एक और विकेट गिर जाता है, क्योंकि वो 2 ओवर में 4 विकेट गिर गए, जो रसेल और नारायण के बैक टू बैक ओवर्स था, इनफैक्ट नारायण वाज गोइंग टू बोल आउट इन द 13th ओवर, मतलब नारायण बोल्ड आउट इन द 13th ओवर, उसके बाद नारायण के ओवर्स नहीं थे, ठीक है, बट शॉकिंगली ये नारायण का डर था या क्या था मुझे पता नहीं, वहां पे सुयश प्रभु देसाई अहेड ऑफ महिपाल लोमरोर, अहेड ऑफ दिनेश कार्तिक, इसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब ये एक ब्रेन फेड वाला डिसीजन मुझे तो लगा, टू बी ऑनेस्ट, आपका क्या मतलब इस पे व्यू है? नहीं, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, मतलब इनके हार में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, प्लेयर्स की एबिलिटीज बहुत अच्छी है लेकिन आपकी हम्म स्ट्रेटेजी आपको बर्बाद कर देती है। मैं आज रमनदीप सिंह का इंटरव्यू मैंने सुना, और उसने इतना अच्छा बोला अभिषेक नायर के लिए। हर्षा भोगले ने हम्म बोला, यार आप तो सिर्फ 10 बॉल प्लेयर हो आप, हम्म ना,
तो आप 10 बॉल प्लेयर अगर हो तो आप कैसे माइंड मेकअप करते हो 10 हम्म, बॉल खेलने का, क्योंकि सबसे टफ काम होता है, आपको पता है आप 10 बॉल से ज्यादा खेलोगे ही नहीं, आते ही छक्का मारना है। तो बोला ये सब कुछ अभिषेक नायर की वजह से है, उसी ने मुझे सिखाया है। वो जब मुझे नेट्स में खिलाता भी है तो वो यही बोलता है कि 10 हम्म, बॉल में 25 रन चाहिए, कैसे बनाओगे। और मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक ने भी 3 साल पहले अपने रिवाइवल के लिए अभिषेक नायर को ही थैंक्स बोला था। हम्म। तो मैं आपको आरसीबी में तो आई थिंक उनका पूरा कोचिंग स्टाफ जो है ना वो हम्म टू ब्लेम है, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता फैफ डुप्लेसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहा है कि किसको हम्म भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हमने ग्रुप पे डिस्कस भी किया था ना, जैसे ये बीच में ये दो हम्म। प्लेयर ले आए थे, हिमांशु चौहान और एक और कोई। हाँ, सौरव चौहान और हिमांशु शर्मा। हाँ हाँ। हाँ मतलब, और अगर लाए थे तो एक मैच के बाद हटा दिया, हाँ, एक कि क्या मैच के सोच के बाद लाए हटा थे। दिया, वही वही। महिपाल लोमरोर को तो भाई अच्छी नॉक के बाद भी बैठा दिया था, और आज भी उसको इतना नीचे भेजा कि मतलब कि इट वाज जस्ट ठीक है बेचारा। मतलब मैं आपको एक जस्ट स्टैट्स बताता हूँ। विल जैक्स और रजत पाटीदार ने 107 रन मारे हैं 55 बॉल्स में, 107 रन मारे हैं 55 बॉल्स में। उसके बाद सुयश प्रभुदेसाई और दिनेश कार्तिक ने मारे हैं 49 रन इन 36 बॉल्स। 49 रन इन 36 बॉल्स, यही डिफरेंस हो गया आपके मैच का। क्योंकि दिनेश कार्तिक, चलो ठीक है, वो अपने आप को एटलीस्ट ये जस्टिफाई कर लेगा कि मैं सिंगल नहीं देना चाहता था करण शर्मा को, नहीं तो हम ऑल आउट हो जाते। बल्कि करण शर्मा ने तो उसको प्रूव कर दिया कि भाई नहीं, तू बेवकूफ था, तू अगर मुझे देता तो शायद मैं दूसरे एंड से छक्का मार देता, तेरे ऊपर प्रेशर कम करता, टोटल रन्स कम हो जाते, जो रिक्वायर्ड रन्स थे वो कम हो जाते, और हम शायद मैच जीत जाते। लेकिन बहुत बेकार स्ट्रेटेजी थी। आई थिंक सब जॉस बटलर नहीं बन सकते, ये ही प्रूव हो गया आज। नहीं, और एक्चुअली में सब जॉस बटलर नहीं बन सकते, वो तो बात है ही सही, बट दिनेश कार्तिक जीत में कभी रन नहीं बना सकता, वो ज्यादा बड़ी बात। हम्म। एंड बहुत अच्छा खासा चेज का मोमेंटम टूट गया, बट इट वाज अ ग्रेट बट विन। आई थिंक टुमारोज मैच इज वेरी वेरी क्रूशियल हाँ फॉर आईपीएल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ। आपको क्या लग रहा है कल के मैच का, क्या लग रहा है सवाई मानसिंह मेरी यार स्टेडियम में? मेरी मेरी एक्चुअली में ना, मतलब ये मेरी फर्स्ट और सेकंड फेवरेट टीम का मैच है, राजस्थान, हम्म क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो ये मेरी हम्म मतलब मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। और हम्म मुंबई मेरी फेवरेट टीम है सचिन के टाइम से ही। हम्म बट मैं कल फॉर द सेक ऑफ आईपीएल आई वांट एमआई टू विन, क्योंकि अदरवाइज राजस्थान बहुत आगे निकल जाएगी, और फिर वो जो थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए जो लड़ाई होती है ना वो हम्म। रहेगी ही नहीं, मतलब अगर कल एमआई हार जाता है तो। अच्छा। सो फॉर द सेक ऑफ आईपीएल की टेबल में थोड़ा सा हम्म मजा रहे, एटलीस्ट हाँ, फॉर द फोर्थ स्पॉट, आई वांट हम्म एमआई टू विन। अदरवाइज राजस्थान तो 16 पॉइंट हो जाएंगे भाई। हम्म कहाँ हम्म। जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बट वो। क्या आपको क्या लगता है एमआई को क्या करना पड़ेगा जयपुर में जीतने के लिए? बड़ा ग्राउंड है, इट्स नॉट वानखेड़े, वानखेड़े से बड़ा ग्राउंड है सवाई मानसिंह स्टेडियम। क्या लगता है आपको यार क्या बैटिंग करना? फर्स्ट करके 200 रन बनाने पड़ेंगे। हम्म। अच्छा। या मतलब बैटिंग तो फर्स्ट करना क्योंकि पड़ेगा एमआई को। बट इनको बोल्ट से हाँ डर रीजन लगेगा है ना, ना, क्योंकि 125 पे ऑल आउट हो गए थे ना ये लोग वानखेड़े में, तो मे नहीं बी दे विल नहीं डर प्रेफर टू की। चेज। देखो दो चीजें हैं, आरआर इज नॉट अ गुड चेजर, पहली हम्म। बात। हाँ, और ये तो बात सही है। मुंबई की बॉलिंग बहुत खराब है, तो अगर बैट फर्स्ट जो आरआर का स्ट्रांग पॉइंट है हम्म और वहां पे मुंबई की खराब बॉलिंग आ गई, तो हो सकता है 225-30 रन बन जाए, लेकिन फिर हम्म। ये चेज ही नहीं कर पाए। हाँ, ये बात तो सही। क्योंकि बारिंग बुमराह, आप सोचो ये 200 रन तब दे रहे हैं जब बुमराह 4 ओवर में 16-17 रन दे रहे हैं। हम्म। हाँ, बुमराह और क्विटजी ने भी थोड़ी अच्छी बॉलिंग की, एटलीस्ट विकेट्स ले नहीं रहे बट वो। कोएटजी ने विकेट नहीं कोएटजी ने विकेट लिए हैं, इकोनॉमी तो उसकी 9+ ही रही है। राइट। तो कल देखते हैं, कल का मैच देखेंगे अर्शांश भाई। आई एम गोइंग विथ माय टीम ऑलवेज फॉर ऑल आरआर मैचेस, तो मैं आई एम गोइंग टू बैक माय टीम। हल्ला बोल। तो देखते हैं, कल के मैच के बाद मिलेंगे अर्शांश भाई, काफी मजा आएगा कल मिलने में। बिल्कुल, ओके तो बाय थैंक यू सो मच अर्शांश भाई, थैंक यू फॉर, एंड बाय प्लीज बाय सब्सक्राइब आवर चैनल बाय। क्रिकेट कैबिन।